નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ એટલે કે CET અંતર્ગત 2025ની પરીક્ષાની તૈયારી માટે આપણે બધા જ અહીંયા ભેગા થયા છે અને આજે ધોરણ 5ના હિન્દી વિષયની તૈયારીના ભાગરૂપે આપણે બધા અહીંયા ભેગા થયા છીએ. તો વિદ્યાર્થીઓ, સૌપ્રથમ કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ એટલે કે પરીક્ષાનું જે પ્રશ્નપત્ર છે જેનો ગુણભાર કેટલો રહેશે એના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ. તો પ્રશ્નપત્રની અંદર પ્રશ્નોની સંખ્યા 120 રહેશે, જેના કુલ ગુણ 120 રહેશે, એટલે કે દરેક પ્રશ્ન માટે 1 ગુણ રહેશે, જેનો સમય 150 મિનિટનો રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 120 માર્ક્સનું પેપર છે, જેના કુલ ગુણ 120 છે, દરેક પ્રશ્નનો 1 માર્ક છે, પણ સમય મર્યાદા 150 મિનિટ છે, એટલે આપણને દરેક પ્રશ્ન માટે 1 મિનિટથી થોડો વધારાનો સમય મળશે. કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટની પરીક્ષાના માળખાની વાત કરીએ તો પરીક્ષા જે છે એ બહુ વિકલ્પ સ્વરૂપની રહેશે અને જે પ્રશ્નો છે એ હેતુલક્ષી પ્રશ્નો રહેશે. બહુ વિકલ્પની પરીક્ષાની આપણે જ્યારે વાત કરીએ તો આપણે બધા જ જે એકમ કસોટી અત્યાર સુધી આપીએ છીએ જેની અંદર આપણે ABCD એ રીતના વિકલ્પ આપેલા હોય છે અને એ વિકલ્પમાંથી આપણે કોઈ પણ એક વિકલ્પને પસંદ કરીએ છીએ. તો એ રીતે આ પરીક્ષામાં પણ બહુ વિકલ્પીય પ્રશ્નો રહેશે, જેના જવાબ કોઈ પણ વિકલ્પમાંથી તમારે એક સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને આપવાનો રહેશે. પરીક્ષાનું જે માધ્યમ છે એ ગુજરાતી અથવા અંગ્રેજી ભાષામાં રહેશે. 2 માધ્યમ તમને આપવા મળશે, ગુજરાતી અથવા અંગ્રેજી. પરીક્ષાનો જે અભ્યાસક્રમ છે એ ધોરણ 5માં તમે જે ભણેલા છો, ધોરણ 5 સુધી તમે જે ભણેલા છો એને આધારિત રહેશે. વિષયની વાત કરીએ તો CET છે એ કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ છે, એટલે એની અંદર દરેક વિષયને મહત્વ આપવામાં આવશે, જેમાં ગણિત, ગુજરાતી, અંગ્રેજી, હિન્દી, પર્યાવરણ, તાર્કિક પ્રશ્નો પણ હશે અને સામાન્ય જ્ઞાનને લગતા પ્રશ્નોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવશે. કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટના ગુણભારની વાત કરીએ તો ટોટલ આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે 120 માર્ક્સનું પેપર છે, જેમાં તાર્કિક ક્ષમતાના 30 ગુણ રહેશે, ગણિત સજ્જતાના 30 ગુણ રહેશે, પર્યાવરણના 20 ગુણ રહેશે, ગુજરાતીના 20 ગુણ રહેશે અને અંગ્રેજી અને હિન્દી બંનેના થઈને 20 ગુણ રહેશે. તો આ રીતે આખું પ્રશ્નપત્ર 120 ગુણમાં આ દરેક વિષયોની અંદર વિભાજિત થયેલું હશે. પ્રશ્નપત્રમાં એવું નહીં હોય કે તાર્કિક ક્ષમતાના પહેલા પ્રશ્ન આપી દીધા હશે, પછી ગણિત સજ્જતાના, એવી રીતે નહીં હોય. પ્રશ્નો જે છે એ તમને મિક્સ આપેલા હશે. તો એ બધાના થઈને 120 માર્ક્સનું તમારું આખું પેપર છે એ રહેશે. હવે હિન્દી વિષયની જ્યારે પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવાની હોય, કેમ કે આજે આપણે બધા જ અહીંયા ધોરણ 5 હિન્દી વિષયના તૈયારી માટે ભેગા થયા છીએ, તો જ્યારે એ પ્રશ્નોની આપણે ચર્ચા કરવી હોય તો એના માટે એની તૈયારીના કયા કયા સ્ત્રોત હોઈ શકે, તો એના માટે ધોરણ 5નું પાઠ્યપુસ્તક, સ્વ અધ્યયન પોથી અને બાયસેક પર જે અવારનવાર પ્રસારિત થયેલા પ્રોગ્રામો હોય છે એ પણ તમે જોઈ અને આના માટેની તમે તૈયારી કરી શકો છો. તો તમને બધાને ખ્યાલ આવી ગયો. કોમન ઇન્સ્ટ્રક્શન મેં તમને બધાને આપી દીધી કે કઈ રીતે તમારે પરીક્ષાની તૈયારી કરવાની હોય છે, એનો ગુણભાર કેટલો છે, કયા કયા વિષયો હોય છે અને કયા સ્ત્રોતનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. તો હવે આપણે આગળ આપણી તૈયારીને વધારીએ. તમે બધા રેડી છો ને મિત્રો? ઓકે, વેરી ગુડ. તો સૌપ્રથમ આપણે હિન્દીમાં આજે તૈયારી કરવાની છે. તો હવેનું જે અત્યાર સુધી મેં તમને જે કોમન માહિતી આપી એ બધી ગુજરાતીમાં આપી, પણ હવે આપણે જ્યારે હિન્દી વિષયની તૈયારી કરવાની છે ત્યારે હવે આપણે હિન્દીમાં વાત કરીશું. તો બધા રેડી થઈ જાઓ, બધા સરસ બેસી જાઓ અને ઓલ ધ બેસ્ટ બધાને. મિત્રો, તમને બધાને અહીંયા સ્ક્રીન પર हिंदी एक परिच्छेद दिखाई है. अब मैं आप सबसे हिंदी में बात करूंगी. आप सब यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हिंदी का परिच्छेद देख रहे हो. पहले अर्थ ग्रहण का परिच्छेद है, तो हम सबको उसे शांति से पढ़ना है. शांति से पढ़ के उसे समझना है. उसके बाद ही हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं. सारा राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस विशेष तरीके से मनाता है. भारत की राजधानी दिल्ली में इस दिन
विशेष उत्साह होता है। लाल किले के मैदान में विशाल जन समूह एकत्रित होता है। हर देशवासी के मन में बलिदान की भावना पैदा होती है। इस दिन रेडियो और दूरदर्शन पर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का भाषण प्रसारित होता है। सब रेडियो स्टेशन देशभक्ति गीत प्रसारित करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उस दिन 1947 का 15 अगस्त हो। युवा हृदय देशभक्ति के नारों और उत्साह से झूम उठता है। मित्रों, आप सब ने यह परिच्छेद को ध्यान से पढ़ा। अब अर्थ ग्रहण के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आपको परीक्षा में इस टाइप का कोई भी परिच्छेद आता है तो सबसे पहले आपको शांति से उस परिच्छेद को पढ़ना है। उस परिच्छेद को पढ़ के उसके एक एक शब्द के अर्थ को आपको ग्रहण करना है और आप अच्छे से उसको समझते हो तभी आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर आप सही तरीके से दे पाओगे। तो हम ये परिच्छेद को पढ़ने के बाद अब आगे के जो प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, हर देशवासी में बलिदान की भावना जाग उठती है क्योंकि। पहला विकल्प है ए, रेडियो पर देशभक्ति के गीत प्रसारित होते हैं। बी, रेडियो में प्रधानमंत्री का भाषण सुनने को मिलता है। सी, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। डी, वातावरण में बलिदान की भावना फैली होती है। विद्यार्थी मित्रों, आपको जो सवाल दिया गया है कि हर देशवासी में बलिदान की भावना जाग उठती है क्योंकि। अब आपने जब परिच्छेद को पढ़ा तो आपको पता चला कि देश में बलिदान की देशवासी में भावना क्यों जाग उठती है। तो आपको चारों विकल्पों को सही से पढ़ना है, समझना है और सही आंसर आपको देना है। तो आप बताइए कि आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो जो हमारा आंसर है वो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, विकल्प सी। बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2, दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस विशेष उत्साह से मनाया जाता है क्योंकि। विकल्प ए, यह भारत की राजधानी है। विकल्प बी, यहाँ लाल किला है। विकल्प सी, यहाँ से प्रधानमंत्री का भाषण प्रसारित होता है। और विकल्प डी, यहाँ के लोग देश से ज्यादा प्यार करते हैं। बच्चों, आप लोगों को जो 4 विकल्प दिए गए हैं तो आपको चारों विकल्प को सही से समझना है कि यह भारत की राजधानी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है और इसीलिए वहां पे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब दिल्ली में लाल किला भी है तो दूसरा विकल्प आपको दिया गया है कि यहाँ पे लाल किला है। तीसरा विकल्प आपको दिया गया है कि यहाँ से प्रधानमंत्री का भाषण प्रसारित होता है। तो ये बात तो हमको परिच्छेद में आई ही थी कि वहां से प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो प्रसारित होता है। और चौथा विकल्प है कि यहाँ के लोग देश से ज्यादा प्यार करते हैं। तो अब आप लोगों को सोचना है कि ये 4 में से कौन सा सही जवाब होगा। तो जब पहली की बात करते हैं, दूसरे की, यहाँ पे लाल किला है तो ऐसा नहीं है कि भाई दिल्ली में जो है वो लाल किला है इसीलिए वहां पे स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं। उसके बाद जो विकल्प दिया गया है कि वहां से प्रधानमंत्री का भाषण प्रसारित होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री का भाषण प्रसारित होता है तो वो तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। और उसके बाद का जो विकल्प है कि यहाँ के लोग देश से ज्यादा प्यार करते हैं, तो देश से प्यार तो हर एक देशवासी करता है। तो अब आप लोगों को सोचना है कि इसमें से कौन सा विकल्प ज्यादा सही है। चलो, आप में से कौन बताएगा कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। यस, वेरी गुड। तो दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है और इसीलिए हम वहां पे स्वतंत्रता दिवस उत्साह से मनाते हैं। अब हम अगले प्रश्न पे जाएंगे। ये आंसर है आपका विकल्प ए, यह भारत की राजधानी है। प्रश्न 3, निम्नलिखित विकल्पों में से
गलत विधान पहचानिए। आपको नीचे विकल्प दिए गए हैं और उसमें से आपको गलत विधान को पहचानना है। विकल्प ए है, रेडियो पर देशभक्ति के गीत सुनाई देते हैं। विकल्प बी, लोग लाल किले के मैदान में इकट्ठा होते हैं। विकल्प सी, देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। और विकल्प डी, रेडियो पर राष्ट्रपति का भाषण प्रसारित होता है। अब आपको ये चारों विकल्पों को पढ़कर सोचना है कि कौन सा विकल्प इसमें से आपको गलत लग रहा है। तो आप लोगों ने सब ने परिच्छेद को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा है। तो पहला विकल्प जो है वो है, रेडियो पर देशभक्ति गीत सुनाई देते हैं। बी विकल्प जो है, लोग लाल किले के मैदान में इकट्ठा होते हैं। देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। और चौथा विकल्प है, रेडियो पर राष्ट्रपति का भाषण प्रसारित होता है। तो ये सारी बातें हमारे परिच्छेद में आई हुई है। तो आपको कौन सा विकल्प इसमें से गलत लग रहा है? कौन बताएगा? वेरी गुड। तो विकल्प सी जो है वो गलत विकल्प है। क्यों? किसी को जवाब पता है? ओके, वेरी गुड। क्योंकि देश जो है दो राष्ट्रीय त्योहार मनाता है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। लेकिन हमारे जो परिच्छेद में बात हुई है वो स्वतंत्रता दिवस की हुई है। और यहाँ पे आपको गलत विकल्प दिया गया है कि देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो आपने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया, वेरी गुड। प्रश्न 4, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी जोड़ अयोग्य है? यानी कि कौन सी जोड़ है वो गलत है। विकल्प ए, प्रधानमंत्री भाषण। विकल्प बी, रेडियो स्टेशन देशभक्ति गीत। विकल्प सी, देशवासी बलिदान की भावना। और विकल्प डी, 15 अगस्त 1947 गणतंत्र दिवस। इसमें से आपको कौन सी जोड़ है वो अयोग्य लग रही है? परिच्छेद को आपको दिमाग में ध्यान में रखना है कि जो प्रधानमंत्री है, परिच्छेद में भाषण की बात हुई है कि प्रधानमंत्री के द्वारा भाषण दिया जाता है उस दिन। दूसरा जो विकल्प है कि रेडियो स्टेशन पे देशभक्ति के गीत बजते हैं। तीसरा विकल्प है कि देशवासी में बलिदान की भावना आती है। पर जो चौथा विकल्प है कि 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो आपको बताना है कि ये चारों विकल्प में से आपको कौन सा गलत लग रहा है। क्या विकल्प बी गलत है या विकल्प ए गलत है? वेरी गुड, विकल्प डी गलत है, क्योंकि 15 अगस्त को हम गणतंत्र दिवस नहीं मनाते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वेरी गुड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, देशवासी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं क्योंकि ए, देश के लोग उत्सव प्रिय है, देश में उत्सव मनाने का कानून है, लोग देश से प्यार करते हैं, एंड विकल्प डी, उस दिन छुट्टी होती है। बच्चों, आपको 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो जो पहला विकल्प है कि देश के लोग उत्सव प्रिय है। स्वतंत्रता दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम लोग उत्सव प्रिय है, इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बी विकल्प है कि देश में उत्सव मनाने का कानून है। ऐसा कोई कानून है कि हमें देश में उत्सव मनाने ही है। क्यों हम इसलिए मनाते हैं? क्योंकि लोग देश से प्यार करते हैं, इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। या हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है। तो आपको ये चारों विकल्प को देख के सही जवाब आपको देना है। तो हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? आप में से कौन इसका जवाब देगा? यस, वेरी गुड। तो जो सी विकल्प है, क्योंकि हम लोग सारे लोग देश से प्यार करते हैं, क्योंकि भारत हमारा देश है और हम भारत के देशवासी है, भारत के नागरिक है। तो इसीलिए हम देश से प्यार करते हैं और इसीलिए हम स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से सीईटी की परीक्षा में अर्थ ग्रहण के
लिए इसी टाइप का गद्यांश दिया जाएगा जिसमें से कि आपको अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें आपको विकल्प दिया जाएगा और उस विकल्प में से आपको सही विकल्प को पसंद करना है और हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 गुण मिलेगा। अभी हम दूसरे गद्यांश की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैंने आप सबको समझाया कि जब भी गद्यांश आता है परीक्षा में तो हमें उसको शांति से समझना है, उसके अर्थ को समझना है, एक एक शब्द के अर्थ को समझकर ही हमें प्रश्न का जवाब देना है। अगर आप जल्दबाजी करोगे, क्योंकि जो जवाब होंगे, जो विकल्प होंगे, वो सारे एक जैसे ही होंगे, तो आपको शांति से पहले परिच्छेद को पढ़ना है, उसे समझना है और उसके बाद ही आपको प्रश्न के जवाब देने हैं। तो अभी हम दूसरा जो हमारा परिच्छेद है उसको पढ़ेंगे। मोहन नाक पर रुमाल रखकर अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और मित्र भी थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियां आ रही थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगरपालिका इसे साफ नहीं करती? अजय की माताजी ने कहा, बेटा, नगरपालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। तो मित्रों, आप सबके सामने जो परिच्छेद रखा है उसमें आपको सबसे पहले तो स्वच्छता का जो महत्व है वो समझाया गया है। यहाँ पे एक छोटे से परिच्छेद के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि स्वच्छता का कितना महत्व होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने परिच्छेद को अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। मैं यहाँ पे आपको एक बार पढ़ के समझा रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगे तो परीक्षा में आप इस परिच्छेद को 2 बार भी पढ़ सकते हो। अब इस परिच्छेद को ध्यान में रखते हुए उसके प्रश्न और जवाब हम देंगे। तो प्रश्न 1, मोहन ने नाक पर रुमाल रखा था क्योंकि। विकल्प ए, मोहन को जुकाम हुआ था। विकल्प बी, मोहन को बदबू आ रही थी। विकल्प सी, मोहन के दांत में दर्द था। विकल्प डी, मोहन मुंह पोंछ रहा था। मित्रों, जब आप चारों विकल्प को पढ़ोगे तो आपको चारों के चारों विकल्प सही लगेंगे। क्यों? क्योंकि मोहन को जुकाम हुआ था। अब जब हमें जुकाम होता है तो हम मुंह में रुमाल हाथ में रख के मुंह के ऊपर रखते हैं। दूसरा, हमें जब बदबू आती है तभी भी हम रुमाल को मुंह के ऊपर रखते हैं। जब किसी के दांत में तेज दर्द होता है तो भी हम रुमाल का उपयोग करते हैं और मुंह पोंछना होता है तभी भी हम रुमाल का उपयोग करते हैं। लेकिन बच्चों, हमें जो जवाब देना है वो परिच्छेद को ध्यान में रख के देना है। तो परिच्छेद में जो दिया गया है उसको भी जब हम जवाब देते हैं तो ध्यान में रखना है। तो मोहन को जुकाम हुआ था, ऐसा कुछ परिच्छेद में आया है? नहीं आया है। मोहन को बदबू आ रही थी, ऐसा कुछ आया है? या फिर दांत में दर्द था, या फिर मुंह पोंछ रहा था? तो आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है? नहीं, वो जवाब गलत है। मोहन को दांत में दर्द था, वो परिच्छेद में आया नहीं है। और कुछ और कोई आंसर सही बता सकता है? ओके, मोहन को बदबू आ रही थी, बिल्कुल सही। बहुत ही बढ़िया आंसर कि मोहन को बदबू आ रही थी, इसलिए मोहन ने रुमाल जो है वो नाक पर रखा था। क्योंकि जो हमारा परिच्छेद है वो परिच्छेद हमारा पूरा स्वच्छता के आधार पर है और वहां पे स्वच्छता ना होने के कारण बदबू आ रही थी और इसीलिए मोहन ने नाक पे रुमाल रखा हुआ था। हमारा आंसर जो है वो विकल्प बी है, मोहन को बदबू आ रही थी। अगला प्रश्न है, अजय के मित्र कहाँ थे? विकल्प ए, मोहन के घर। विकल्प बी, अजय के घर। विकल्प सी, अपने घर।
और विकल्प डी माता पिता के घर। बच्चों, आपने परिच्छेद को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से ध्यान में रखा है, तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका उत्तर भी बहुत ही सरल है। तो आप में से कौन इसका जवाब देगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब है अजय के घर। मोहन है वो अपने अजय जो मित्र है उसके घर सब मित्र इकट्ठा हुए थे। अभी हम अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। प्रश्न नंबर 3। सड़क पर बहुत कचरा था क्योंकि कूड़ेदान सड़क पर था। बी नगरपालिका की कूड़ेदान की गाड़ी सड़क पर आती थी। सी लोग सड़क पर कूड़ा डालते थे। एंड डी सड़क बहुत गंदी थी। अब आपको ये सोचना है कि सड़क पर इतना कचरा क्यों था। तो जो विकल्प हमारा ए है कि कूड़ेदान सड़क पर था, तो कूड़ेदान अगर सड़क पर होता तो क्या सड़क पर कचरा होता? ये आपको सोचना है। विकल्प बी जो है हमारा, नगरपालिका की कूड़ेदान की गाड़ी सड़क पर आती थी। अगर गाड़ी कूड़ेदान की गाड़ी कूड़ा लेने के लिए सड़क पर आती है तो सड़क पर कचरा नहीं होता। विकल्प सी लोग सड़क पर कूड़ा डालते थे। कचरा क्यों था? क्योंकि सब लोग सड़क पर ही कूड़ा डाल देते थे। और विकल्प डी है कि सड़क बहुत गंदी थी। तो इसमें से आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है, जो कि आपको परिच्छेद को समझकर उसे याद करके उसमें से ही आपको जवाब देना है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। सड़क पर बहुत कचरा था, तो इसका सही विकल्प है सी। वेरी गुड। लोग सड़क पर कूड़ा डालते थे, क्योंकि इतनी सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी कूड़ेदान भी था सड़क पर। नगर पालिका की जो कूड़ेदान की गाड़ी थी वो भी आती थी सड़क पर। ठीक है, उसके बावजूद भी लोग जो है वो सड़क पर कूड़ा डालते थे और इसीलिए सड़क बहुत गंदी हो गई थी। तो ये हमारा विकल्प सी है, वो सही जवाब है। प्रश्न 4। अजय की माताजी ने क्या नहीं कहा? अजय की माताजी ने, आप सबने परिच्छेद में पढ़ा कि बहुत सारी बातें बताई और उसके दरमियान माताजी ने क्या नहीं बताया उसको आपको सही जवाब देके पसंद करना है। तो विकल्प ए होगा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है। बी लोग कूड़ेदान में कूड़ा डालते हैं। विकल्प सी जगह जगह कूड़ेदान रखे हैं। और विकल्प डी कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं। तो यहाँ पे आप सब ने 4 विकल्प देखे। अब माताजी ने क्या नहीं कहा है वो हमें पसंद करना है। तो सबसे पहले जब माताजी बात कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि नगरपालिका की गाड़ी आया करती है। क्या ऐसा बताया है? वो आपको सोचना है। लोग कूड़ेदान में कूड़ा डालते हैं, क्या ऐसा बताया है? उसके बाद जगह जगह कूड़ेदान रखे हैं, ये बताया है? या फिर लास्ट में कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं? तो इसमें से कौन सी बात माताजी ने नहीं बताई? तो क्या इसका जवाब सबको पता है? कोई बात नहीं, मैं आपको जवाब दे देती हूँ। क्योंकि माताजी ने सारी बातें बताई थी कि बेटा नगरपालिका की गाड़ी तो आया करती है और जगह जगह कूड़ेदान भी रखे हैं, पर लोग कूड़ा जो है वो सड़क पर ही फेंक देते हैं। लेकिन माताजी ने ये नहीं बताया है कि लोग कूड़ेदान में कूड़ा डालते हैं। अगर ऐसा होता तो स्वच्छता होती, तो मोहन को नाक पर रुमाल नहीं रखना पड़ता। सही बात है ना? तो आप लोगों को भी स्कूल में कचरा इधर उधर, कूड़ा इधर उधर फेंकना नहीं है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो विकल्प बी होगा कि लोग कूड़ेदान में कूड़ा डालते हैं, ऐसा नहीं कर रहे थे, ऐसा माताजी ने बताया नहीं था। प्रश्न नंबर 5। मोहन अजय के घर किससे नहीं मिला? मोहन जब अजय के घर गया तो कौन कौन था वहां पे? तो विकल्प ए दादाजी, विकल्प बी पिताजी, विकल्प सी दादी जी और विकल्प डी माताजी। तो यहाँ पे परिच्छेद को ध्यान में रख के आपको बताना है कि वहां पे कौन मौजूद नहीं था। कौन बताएगा सही जवाब? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जब मोहन अजय के घर गया तब वहां पे माताजी भी थी,
दादी जी भी थी, पिताजी भी थे, लेकिन दादाजी नहीं थे। तो सही जवाब होगा विकल्प ए। बहुत बढ़िया बच्चों। सवाल 6, खाने की चीजों पर बार बार खाली जगह आ रही थी। तो खाली जगह जो दी गई है उसके लिए आपको सही शब्द दिए गए विकल्पों में से पसंद करना है। विकल्प है ए चूहे, बी मक्खियाँ, सी मच्छर और डी चिड़िया। अब हमें जब ये जवाब देते हैं हम तब परिच्छेद को दिमाग में रखकर जवाब देना है। अब खाने की चीजों पर बार बार क्या आ रही थी? तो चूहा था, मक्खियाँ थी, मच्छर थे या चिड़िया थी? कौन जवाब देगा सही? बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब होगा मक्खियाँ। खाने की चीजों पर बार बार मक्खियाँ आ रही थी। तो बच्चों, हम सबने 2 गद्यांश की प्रैक्टिस की। 2 गद्यांश में से अलग अलग सवाल आए और उसी सवाल के जवाब आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से दिए। बच्चों, ये आज जो हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि परीक्षा में यही गद्यांश आएंगे, लेकिन इसी टाइप के गद्यांश परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपको हर रोज अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। अब हम अगली प्रैक्टिस करेंगे वो पद्यांश की करेंगे। तो पद्यांश की कुछ लाइनें आपको दी गई है और उसको मैं पढ़ती हूँ, आप आराम से सुनना और पढ़ना। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहां, हरे हरे खेत लहराएंगे वहां, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, बाए दाहिने बाए थम नन्ना मुन्ना, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम नन्ना मुन्ना। ये बहुत ही बढ़िया कविता है। आप सब ने इस कविता को सुना होगा और अब हम इस कविता में से कुछ सवाल और जवाब है उसके बारे में समझेंगे। तो पहला सवाल जो है वो है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ पहचानिए। विकल्प ए दोस्त मित्र, विकल्प बी समय वक्त, विकल्प सी मूर्ख बेवकूफ और विकल्प डी सुबह प्रतिदिन। आपको जो सवाल पूछा गया है बच्चों कि निम्नलिखित विकल्प यानी कि आपको जितने भी विकल्प नीचे दिए गए हैं उसमें से गलत जोड़ को पहचानना है। तो जो पहली जोड़ है वो है दोस्त और मित्र। ये पढ़ के हमें क्या लग रहा है? दूसरा जो विकल्प है समय और वक्त, तीसरा है वो मूर्ख और बेवकूफ और चौथा है वो सुबह और प्रतिदिन। आपको चारों विकल्प को अच्छे से समझना है और कौन सा विकल्प आपको गलत लग रहा है वो बताना है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प गलत होगा? बहुत बढ़िया, सुबह प्रतिदिन ये विकल्प गलत है। अब कैसे गलत है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसे पहला विकल्प आपको दिया गया है दोस्त और मित्र, वो दोनों ही समानार्थी शब्द है। दोस्त और मित्र दोनों समानार्थी शब्द है। इसी तरह से दूसरे विकल्प में हमें दिया गया है समय और वक्त, वो भी समानार्थी शब्द है। और तीसरे विकल्प में दिया गया है मूर्ख और बेवकूफ, वो भी समानार्थी शब्द है। जबकि हमारा जो चौथा विकल्प है विकल्प डी सुबह और प्रतिदिन, वो दोनों समानार्थी शब्द नहीं लग रहे हैं और इसीलिए वह गलत जोड़ बना रहे हैं और इसीलिए विकल्प डी है वो गलत है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अयोग्य है? विकल्प ए देश, विकल्प बी राष्ट्र, विकल्प सी वतन और विकल्प डी प्रदेश। आप सबके सामने 4 विकल्प आए हैं और आपको इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प अयोग्य लग रहा है, जो योग्य नहीं लग रहा है, उसे पसंद करना है। तो देश, राष्ट्र, वतन और प्रदेश, इसमें से आपको कौन सा विकल्प अयोग्य लग रहा है? बहुत बढ़िया, जो विकल्प डी है प्रदेश, वो गलत विकल्प है। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे।
जैसे कि देश की हम बात करते हैं तो देश हमारा देश हो गया, देश को हम राष्ट्र के नाम से भी बोलते हैं और देश को हम वतन के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि देश, राष्ट्र और वतन ये तीनों समानार्थी शब्द है। हम किसी भी जगह पे ये तीनों में से कोई भी एक शब्द को उपयोग कर सकते हैं, जबकि जो प्रदेश शब्द है वो ये तीनों से मिलता जुलता नहीं है और ये इसीलिए अयोग्य होने के कारण ये हमारा जवाब सही होगा। विकल्प डी प्रदेश है वो अयोग्य विकल्प है। बहुत बढ़िया। प्रश्न 3, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी जोड़ अयोग्य है? धरती आकाश, छोटा बड़ा, छांव धूप, ऊंचा ऊपर। बच्चों, हमने इसके आगे का जो सवाल देखा उसमें जो जोड़ दी गई थी वो समानार्थी शब्दों की दी गई थी। अब यहाँ पे जो जोड़ दी गई है उसमें से कौन सी जोड़ अयोग्य है वो आपको समझ के उसका जवाब देना है। अब सबसे पहली जोड़ है धरती आकाश, दूसरी जोड़ है छोटा बड़ा, तीसरी जोड़ है छांव और धूप और चौथी जोड़ है ऊंचा और ऊपर। बच्चों, आप सब लोग अच्छे से समझो और फिर उसका उत्तर क्या होगा वो मुझे बताओ। वेरी गुड। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, ऊंचा ऊपर। अब क्यों इसका जवाब ऊंचा और ऊपर होगा उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में जानकारी लेंगे। तो जो पहला विकल्प है वो है धरती आकाश। पहले जो हमारा प्रश्न था उसमें समानार्थी शब्द दिए गए थे, यहाँ पे धरती और आकाश दोनों विरुद्धार्थी शब्द है। दूसरा जो है छोटा बड़ा, वो भी एक दूसरे के विरोधी शब्द है। तीसरा जो है वो है छांव और धूप, वो भी विरोधी शब्द है, लेकिन ऊंचा और ऊपर जो है वो विरोधी शब्द नहीं है, वो समानार्थी शब्द है। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी है वो अयोग्य है और वह गलत है। आप सब लोग बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हो, खूब खूब अभिनंदन आप लोगों को। प्रश्न नंबर 4, बड़ा होके देश का खाली जगह, बीच में आपको खाली जगह दी गई है, बनूंगा। बड़ा होके देश का खाली जगह बनूंगा। आपको जो भी विकल्प दिए जा रहे हैं उसमें से आपको सही विकल्प उस खाली जगह में लिखना है। तो विकल्प ए है किनारा, विकल्प बी प्यारा, विकल्प सी दुलारा और विकल्प डी सहारा। तो यहाँ पे बड़ा होके देश का ये पंक्ति आपको आपकी जो काव्य है उसमें दी गई है। तो उसमें आपको क्या किनारा दिया गया है, प्यारा दिया गया है, दुलारा दिया गया है या सहारा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, सहारा। बहुत बढ़िया। ये बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल। आपको काव्य में दिया गया ही है। अगर आपने ध्यान से काव्य की पंक्तियों को पढ़ा है बच्चों, तो आपको इसका जवाब है वो बहुत ही अच्छे से आया होगा। तो बड़े होके देश का सहारा बनूंगा। प्रश्न 5, नन्ना मुन्ना राही हूँ रेखांकित शब्द के लिए सही विकल्प नहीं है। अब राही जो है वो रेखांकित शब्द है, अब उसके लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है वो आपको बताना है। तो विकल्प ए है वो मुसाफिर, विकल्प बी यात्री, विकल्प सी राहगीर, विकल्प डी राहत। बच्चों, आपको ठीक से पढ़ना है। नन्ना मुन्ना राही हूँ, जो रेखांकित शब्द है वो है राही, और वह राही के लिए नीचे में से कौन सा शब्द है वो सही नहीं है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राही शब्द का अर्थ क्या होता है। तो विकल्प ए है वो मुसाफिर दिया गया है, विकल्प बी दिया गया है यात्री, विकल्प सी दिया गया है राहगीर और डी दिया गया है राहत। बच्चों, आप देखिए, मुसाफिर यानी कि जो राही है, राही का मतलब होता है कि जो राह पर चलता है, यानी कि मुसाफिर। विकल्प बी है यात्री, यात्री भी यात्रा करते हैं। विकल्प सी है वो राहगीर यानी कि राह पर चलने वाला, और विकल्प डी है वो राहत। तो आपको
इसमें से कौन सा विकल्प है वो अयोग्य लग रहा है, जो कि जो दूसरे विकल्प है उसमें से थोड़ा अलग लग रहा है। इसका आंसर कौन बताएगा? बहुत बढ़िया। तो जो विकल्प डी है वो अलग है, वो सब विकल्प से थोड़ा अलग है, उसका अर्थ है वो राही से मिलता नहीं है, इसीलिए वो विकल्प है वो सही विकल्प होगा। हमारा जो जवाब है वो आएगा विकल्प डी, राहत। बहुत बढ़िया। धूप में पसीना बहाऊंगा जहां, इस पंक्ति का अर्थ है विकल्प ए धूप में खड़े होकर पसीना बहाना, विकल्प बी धूप की वजह से गर्मी लगना, विकल्प सी कड़ी धूप में भी मेहनत करना, और विकल्प डी गर्मी की वजह से पसीना बहना। मित्रों, धूप में पसीना बहाऊंगा जहां, इस पंक्ति के अर्थ को हमें सही से पहले समझना है और उसके बाद सारे विकल्पों को सही से पढ़कर भी उसका जवाब देना है, क्योंकि आपको जो विकल्प दिए जाएंगे वो एकदम करीब करीब ही जवाब होंगे, तो आपको उस टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो धूप में पसीना बहाऊंगा जहां, यानी कि धूप में खड़े होकर पसीना बहाना, ऐसा करना है कि धूप में खड़ा रहना है और फिर पसीना बहाना है। इस काव्य का ये भावार्थ है। दूसरा है कि धूप की वजह से गर्मी लगना, यानी कि धूप हो रही है और हम वहां पे खड़े हैं तो हमें गर्मी लग रही है, ये विकल्प हो सकता है। या हमें कड़ी धूप में मेहनत करना है, या फिर गर्मी की वजह से पसीना बहना, बहुत ज्यादा गर्मी है और इसीलिए पसीना बह रहा है, ये सही विकल्प है। तो चारों में से कौन सा सही जवाब होगा, ये आपको उपरोक्त जो काव्य पंक्ति दी गई है उसके हिसाब से सोच के इसका जवाब देना है। तो आपके हिसाब से कौन सा सही जवाब हो सकता है? बहुत बढ़िया। इसका सही जवाब है विकल्प सी, कड़ी धूप में भी मेहनत करना। ना, जब पसीना बहता है तो हम कुछ मेहनत करते हैं, कुछ काम करते हैं, चाहे धूप हो, छांव हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं और मेहनत करते करते हमें जब पसीना निकलता है तो हम उसमें पसीना क्यों निकलता है? क्योंकि हम मेहनत करते हैं। तो इसका सही जो विकल्प होगा वो होगा कि कड़ी धूप में भी हम मेहनत करते हैं और इसीलिए इसमें बोला गया है कि धूप में पसीना बहाऊंगा जहां। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर हम जाएंगे। धरती पर पापी न पाएंगे जन्म, क्योंकि धरती पे पापी है वो जन्म नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि विकल्प ए देश की रक्षा बालक कर रहे हैं, विकल्प बी देश की रक्षा सिपाही कर रहे हैं, विकल्प सी देश की रक्षा देशवासी करते हैं, और विकल्प डी देश की रक्षा बालक सिपाही बनकर करेगा। देखिए बच्चों, मैंने पहले ही आपको बोला था कि जब भी इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में आएंगे तब आपको जो पंक्ति दी गई है या जो गद्यांश दिया गया है या जो पद्यांश दिया गया है उसको ध्यान में रखकर ही जवाब देना है। जैसे आप देखोगे तो आपको चारों विकल्प सही ही लगेंगे, लेकिन आपको जो जवाब देना है वो जो पद्यांश है उसमें से देखकर ही देना है। तो धरती पे पापी कब जन्म नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? तो देश की रक्षा बालक करते हैं इसलिए जन्म नहीं लेंगे, या फिर देश की रक्षा सिपाही करते हैं इसलिए नहीं लेंगे, देश की रक्षा देशवासी करते हैं इसलिए नहीं लेंगे, या देश की रक्षा बालक सिपाही बनकर करेगा इसलिए। तो चारों में से आपको पद्यांश में कौन सा उत्तर दिया गया है उसी को आपको पसंद करना है। तो पद्यांश को दिमाग में रख के कौन सा उत्तर सही होगा? नहीं, गलत। जो विकल्प ए आपने बोला वो गलत उत्तर है। देश की रक्षा बालक करते हैं, वो उत्तर गलत है। वो बाद में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों गलत है। ओके, और कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, यस, वेरी गुड। तो देश की रक्षा बालक सिपाही बनकर करेगा, जो विकल्प डी दिया गया है वो सही विकल्प है। मैंने पहले ही बोला था कि आपको पद्यांश को ध्यान में रखकर जवाब देना है। तो आपने जो जवाब दिया था कि देश की रक्षा बालक करते हैं, अगर पद्यांश नहीं होता तो चलो मान लो एक स्टेज पे हम, लेकिन सिर्फ तो बालक देश की रक्षा नहीं करते ना,
और इस पद्यांश में तो वो जवाब दिया ही नहीं है, बट की पद्यांश में दिया गया है कि बालक जो है वो सिपाही बनकर देश की रक्षा करेंगे और इसीलिए देश में कोई भी पापी है वो जन्म नहीं ले पाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। देश का सहारा बनूंगा अर्थात विकल्प ए देश के विकास में योगदान देना, विकल्प बी देश बेसहारा है इसलिए इसे सहारा देना, विकल्प सी देश हार गया है इसलिए सहारा देना, या विकल्प डी देश को पैसे कमाकर देना। तो यहाँ पे जो सवाल है वह है देश का सहारा बनूंगा। अगेन आपको जो जवाब है वो परिच्छेद को ध्यान में रखकर देना है। तो सबसे पहला विकल्प है कि देश का सहारा बनने के लिए आपको क्या करना है, देश के विकास में योगदान देना है। विकल्प बी है देश बेसहारा है इसलिए सहारा दे रहे हो आप, या फिर देश हार गया है इसलिए सहारा दे रहे हैं, या देश को पैसे कमाकर देके आप सहारा बनोगे। तो ये चारों विकल्प से आपको कौन सा उत्तर सही लग रहा है? यस, वेरी गुड। तो विकल्प ए देश के विकास में योगदान देना। जब आप देश को आप किसी भी तरह से सहायता रूप बनना चाहते हो, देश को मदद करना चाहते हो, तो आप देश के विकास में, आज हमारा देश इतना विकास कर रहा है और इस विकास में जब आप योगदान दोगे, उसमें आप मदद करोगे, तो देश है वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा और इसी तरह से आप देश को सहायक भी बन सकते हो। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा का अर्थ नहीं है। आपको प्रश्न सही से समझना है। यहाँ पे आप प्रश्नों को सही से पढ़िए कि दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा का अर्थ नहीं है, नहीं, नहीं है। तो जवाब भी उसी तरह से आएगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एकदम जल्दी से प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, अर्थ समझते नहीं है और जवाब करके आके बाहर आके हमें पता चलता है कि हमने तो गलत जवाब है उसे पसंद किया हुआ था। तो विकल्प ए बहुत प्यारा बनना, विकल्प बी मनपसंद बनना, विकल्प सी आकाश में चमकना और विकल्प डी परम स्नेही बनना। दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा यानी कि मैं बहुत प्यारा बनूंगा। दूसरा है मनपसंद बनूंगा, आंखों का तारा बनूंगा और आकाश में चमकूंगा, और परम स्नेही बनना। तो आपको परिच्छेद को ध्यान में रखकर इसमें से कौन सा विकल्प है वो आपको अलग लग रहा है, जो ऊपर पंक्ति दी गई है दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा उसको मिलित नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो विकल्प सी जो है आकाश में चमकना वो सही जवाब है, क्योंकि बहुत प्यारा बनना, मनपसंद बनना और परम स्नेही बनना वो तीनों के तीनों जो है वो एक अर्थ के वाक्य है, जबकि आकाश में चमकना है वो दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा उसका अर्थ है वो उससे अलग हो रहा है। बालक बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? विकल्प ए देश को सहारा देने वाला, विकल्प बी तिरंगा ऊंचा रखने वाला, विकल्प सी दुनिया की आंखों का तारा और विकल्प डी निर्देशित सभी। ये पूरा पद्यांश आपने ध्यान से पढ़ा और नीचे जो आपको विकल्प दिए गए हैं सारे कि बालक बड़ा होकर क्या बनना चाहेगा, देश को सहारा देने वाला, तिरंगा ऊंचा रखने वाला, दुनिया की आंखों का तारा और निर्देशित सभी। तो हम एक एक विकल्प को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले मुझे जवाब देना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प बी तिरंगा ऊंचा रखने वाला सही है। ओके, और कोई आंसर देना चाहेगा? विकल्प सी वह भी सही है, दुनिया की आंखों का तारा। और कुछ? ओके, वेरी गुड। विकल्प डी निर्देशित सभी। विद्यार्थी मित्रों, आप जब ए बी सी डी चारों में से
किसी ने मुझे बी का विकल्प सही बताया, किसी ने सी का सही बताया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बोला ना ये सही विकल्प है, सी भी सही विकल्प है। पर क्यों ऐसा बोला? क्योंकि आपको जितने भी विकल्प दिए गए हैं ए, बी और सी, वो तीनों के तीनों विकल्प सही है। तो आपको जब तीनों विकल्प सही है तो जो चौथा विकल्प मैंने दिया गया है कि निर्देशित सभी, यानी कि उपरोक्त जो सारे विकल्प दिए गए हैं वो चारों के चारों विकल्प है वो सही है, और इसीलिए इसका जो जवाब है वह विकल्प डी निर्देशित सभी है वह आएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે હિન્દી ધોરણ 5 સીઈટી અંતર્ગત ગદ્યાંશ અને પદ્યાંશમાંથી જે અર્થગ્રહણને અનુરૂપ જે પ્રશ્નો પૂછાય છે, જે કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટની અંદર જેમાંથી વૈકલ્પિક પ્રશ્નો આપણે કહીએ છીએ એની તૈયારી કરી. મિત્રો, આપણે જે ગદ્યાંશ અને પદ્યાંશની તૈયારી કરી એનો અર્થ એવો નથી કે આ જ ગદ્યાંશ અને આ જ પદ્યાંશ પરીક્ષામાં આવશે. બરોબર? એટલે તમારે વધુ ને વધુ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. આ જસ્ટ ઉદાહરણ રૂપ તમને આપેલું હતું કે જેને ધ્યાનમાં રાખીને તમારે આ રીતની તૈયારીઓ કરવાની હોય છે. તો બધાને જે પરીક્ષા આવનારી છે એના માટે ઓલ ધ બેસ્ટ. આવજો.